Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My topic of presentation is migration and navigation of birds. So first of all, the introduction to migration. The word migration comes from Latin word migra, which means going from one place to another. Many birds have the inherent quality to move from one place to another to obtain the advantage of favorable conditions. इनहेरिटिंग क्वालिटी मीन्स बाय बर्थ क्वालिटी होती है बर्ड में, जिसकी वजह से वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. एक्चुअली माइग्रेशन इज़ अ टू वे जर्नी. ऑनवर्ड जर्नी फ्रॉम होम टू न्यू प्लेस एंड बैकवर्ड जर्नी फ्रॉम न्यू प्लेस टू होम. There is a sort of internal biological clock which regulates the phenomena. Internal biological clocks means when a phenomenon is repeat after a certain interval of time, like a day, like a year, or some hours. Definition of migration. According to J. L. Thompson, 1936, bird migration is changing of habitat periodically recurring and alternating in direction which tend to secure optimum environmental condition all the time. हैबिटाट में जो चेंजेस आ जाती है, क्यों हैबिटाट में चेंजेस आ जाती है? क्योंकि वो एनवायरमेंटल कंडीशंस को सिक्योर करती है. Then types of bird migration. Latitudinal migration. First of all, latitudinal migration. It means the movement from north to south and south to north and vice versa. Most birds live in northern temperate region. When they get facilitate from nesting and feeding during summer, they move towards south during winter. कुछ बर्ड ऐसे हैं जो नॉर्दर्न टेम्परेट रीजन में रहते हैं, लेकिन जब वो नेस्टिंग और फीडिंग से फैसिलिटेट हो जाते हैं समर में, तो वो विंटर में साउथ की तरफ मूव कर जाते हैं. एंड अपोजिट एंड लेसर मूवमेंट आल्सो आकर व्हेन सीजन चेंज. जब सीजन चेंज होता है तो साउथ से नॉर्थ की तरफ भी मूवमेंट होती है, लेकिन वो बहुत कम होती है. जैसे कि स्टर्ना पैराडीसिया breeds in the northern temperate regions and migrate to Antarctic zone along the Atlantic. It was observed that sterna cover a distance of 22 to 500 km during migrations. Sterna पैराडीसिया जो है बर्ड है, वो नॉर्थर्न टेम्परेट रीजन में ब्रीड्स करता है और फिर माइग्रेट करता है एंटार्क्टिक जोन की तरफ. और कितना डिस्टेंस कवर करता है? 22 से 500 किलोमीटर ड्यूरिंग माइग्रेशन. दैट इज स्टर्ना पैराडीसिया. इसकी एक खसूसियत ये भी है कि जब पानी के ऊपर से गुजरता है तो सडनली डाइव करता है पानी में और स्मॉल फिशेस जो है उनको निकाल लेता है, जैसे इसके मुंह में अभी भी एक फिश है. सेकेंड टाइप ऑफ माइग्रेशन इज लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन, दैट इज अपोजिट ऑफ लैटिट्यूडल. वहाँ नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ माइग्रेशन होती है, एंड यहाँ ईस्ट टू वेस्ट एंड वेस्ट टू ईस्ट. एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडल माइग्रेशन इज स्टर्नस वल्गेरिस, जिसे हम पश्तो में खारो कहते हैं. A resident of East Europe and West Asia migrate towards the Atlantic coast. California gulls, a resident and breed in Utah, migrate to westward in winter in the Pacific coast. ये फर्स्ट पिक्चर जो है ब्लैक वाला, ये स्टारलिंग है, और ये जो दूसरा है ये कैलिफोर्निया गल. Third type of migration is altitudinal migration. Altitudinal migration occur in mountainous regions. Many birds inhabiting the mountain peak migrate to lowlands during winter. कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो कि माउंटेन्स के पीक्स पर होते हैं, लेकिन जैसे ही विंटर होती है वो माइग्रेट कर जाते हैं lowlands की तरफ. Golden plover Puvelius start from Arctic tundra and goes up to the plains of Argentina, covering a distance of 11 to 50 kilometer. ये गोल्डन प्लोवर जो पिक्चर में नज़र भी आ रही है, पल्वेलिस, इसका जनरल नेम जो है पल्वेलिस. ये इसका मतलब है रेन, विच मीन रेन. जब बारिश का इम्कान होता है या जब बारिश होने वाली होती है तो ये फॉग बनाती है. ये गोल्डन फ्लावर जो है ये फॉग बनाती है. इसकी वजह से इसे ये प्यूवेलिस नेम भी दिया गया है. प्यूवेलिस मीन general name is, it means rain. Then the fourth type of migration is partial migration. All the members of a group of birds do not take part in migration. एक ग्रुप में जितने बर्ड्स होते हैं वो सारे माइग्रेट नहीं करते, कुछ बर्ड्स माइग्रेट करते हैं, तो उसे पार्शियल माइग्रेशन कहते हैं, जैसे कूट्स एंड स्पून बिल्स. नीचे पिक्चर में एग्जांपल इसकी कूट्स की ये पिक्चर भी.
इसके बाद आती है टोटल माइग्रेशन, व्हेन ऑल मेंबर ऑफ स्पीशीज टेक पार्ट इन माइग्रेशन एंड इट इज़ कॉल्ड टोटल माइग्रेशन। जब एक स्पीशीज़ के सारे मेंबर माइग्रेट करते हैं, एक ग्रुप के सारे मेंबर्स माइग्रेट करते हैं, तो उसे टोटल माइग्रेशन कहते हैं, अपोजिट ऑफ पार्शियल माइग्रेशन। Vagrant are irregular migration when some of the bird disperse to a short or long distance for safety and food. It is called vagrant or irregular migration. जब एक ग्रुप में बर्ड्स होते हैं और वो फूड और सेफ्टी के लिए डिस्पर्स हो जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, तो उसे वैग्रेंट और इरेगुलर माइग्रेशंस कहते हैं। Herons may be the example of vagrant or irregular migration. Other example are black stork. ये पिक्चर जो है, ये फर्स्ट वाला, ये जो है हिरन है, और ये दूसरा जो है ब्लैक स्टॉक। इसके बाद आता है डेली माइग्रेशन। सम बर्ड्स हैव मेक डेली जर्नी फ्रॉम देयर नेस्ट बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। एग्जांपल आर क्राउस, हिरन्स एंड स्टार्लिंग। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने ही नेस्ट से ही माइग्रेट करते हैं डेली, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, जैसे टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। एग्जांपल्स आर क्राउस, हिरन्स एंड स्टार्लिंग। सीजनल माइग्रेशन ऐसी होती है कि जैसे सीज़न चेंज होते हैं बर्ड्स माइग्रेट कर जाते हैं। सम बर्ड्स माइग्रेट एट डिफरेंट सीजन ऑफ द ईयर फॉर फूड और ब्रीडिंग। किस लिए? फूड और ब्रीडिंग के लिए जो बर्ड्स माइग्रेशन करते हैं, सीजन जब सीज़न चेंज होता है तो उसे सीजनल माइग्रेशन कहते हैं। जैसे cuckoos, swift and swallows. They migrate from the south to the north during summer, so they are called summer visitor. जब गर्मी के दौरान ये साउथ से नॉर्थ की तरफ माइग्रेट करते हैं तो इसे समर विजिटर कहते हैं। और जब कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो नॉर्थ से साउथ माइग्रेट करते हैं विंटर के दौरान, तो इसे विंटर विजिटर कहा जाता है। इसके बाद है डायर्नल माइग्रेशन। डायर्नल माइग्रेशन means migration at daytime. Many larger birds like crows, robins, swallows, hawks, jays, bluebirds, cranes, geese migrate during daytime for food. कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो डे टाइम में माइग्रेट करते हैं, किस लिए? फूड के लिए। और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉक्टर्नल माइग्रेशन करते हैं, रात के वक्त माइग्रेशन करते हैं ताकि उनकी प्रोटेक्शन हो जाए डार्कनेस में एनिमीज से। सम स्मॉल size birds like of passerine group like sparrows, warbles, etc. migrate in darkness called nocturnal birds. जो डार्कनेस में माइग्रेट करते हैं या नाइट टाइम में माइग्रेट करते हैं उसे नॉक्टर्नल बर्ड्स कहा जाता है। डार्कनेस ऑफ द नाइट गिव देम प्रोटेक्शन फ्रॉम देयर एनिमीज। There are different causes of migration. Instinct and gonadal changes. It is widely accepted that the impulse to migrate in bird is possibly instinctive. What is meant by instinctive? It means that it is instinctive. It is by birth character. It is not uh, artificial. It is not artificial. It is instinct character, mean by birth character, and the migration towards the breeding ground is associated with gonadal changes. और जब माइग्रेशन करते हैं ब्रीडिंग के लिए, तो वो किस वजह से करते हैं? गोनेडल चेंजेस की वजह से करते हैं। Scarcity of food and day length. Scarcity of food means when there is a shortage of food, and shortening of daylight and increase of cold. और जब बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, सर्दी होती है, are believed to stimulate migration. Migration in bird depend upon two important factors: stimulus and guidance. जब खुराक की कमी हो या शॉर्टनिंग ऑफ डे लाइट हो या बहुत ज़्यादा सर्दी हो, तो इसकी वजह से भी बर्ड माइग्रेट कर जाते हैं। Scarcity of food and fall of daylight are believed to produce endocrinal changes which initiate bird migration. इस scarcity और डे लेंथ की वजह से क्या चेंजेस आ जाती है? एंडोक्राइनल चेंजेस आ जाती है, हार्मोनल चेंजेस आ जाती है, जिसकी वजह से वो बर्ड्स माइग्रेशन शुरू कर देते हैं। इसके बाद आते हैं फोटो पीरियोडिज्म। वहाँ शॉर्टनिंग ऑफ डे लाइट था, यहाँ इंक्रीज इन डे लेंथ था। फोटो पीरियोडिज्म इंड्यूस बर्ड माइग्रेशन। द डे लेंथ इफेक्ट, डे लेंथ क्या इफेक्ट करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड, pineal gland, and also cause growth of gonad which secretes sex hormone that are stimulus for migration. सेक्स हार्मोन सिक्रीट करता है ये गोनेड जो होता है, तो इसकी वजह से भी, और ये पाइनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड को भी इफेक्ट करता है। जब डे लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से भी बर्ड माइग्रेट कर जाते हैं। सीजनल वेरिएशन।
सीजनल वेरिएशन जब मौसम की वजह से तब्दीली आती है तो इसकी वजह से भी बर्ड माइग्रेट करते हैं. द नॉर्थ टू साउथ माइग्रेशन ऑफ बर्ड टेक प्लेस अंडर स्टिमुलस फ्रॉम द इंटरनल कंडीशन ऑफ द गुनेट विच आर इफेक्टेड बाय सीजनल वेरिएशन. जो नॉर्थ से साउथ की तरफ माइग्रेशन होती है बर्ड, वो किस वजह से होती है? इंटरनल कंडीशन ऑफ गुनेट इफेक्ट हो जाती है. किस वजह से? सीजनल वेरिएशन की वजह से. तो बर्ड्स माइग्रेट कर जाते हैं. और इसके बाद आता है गाइडिंग मैकेनिज्म इन बर्ड नेविगेशन. For more than a century, the terrestrial navigation of birds have fascinated the ornithologists. Different explanations have been advanced to explain how birds navigate. Navigation means map, how birds, in which way birds migrate. What are the routes of migrations? So it is difficult to generalize on the mean of orientation and navigation and migration. The different group of birds with different mode of existence have evolved different mean of finding their way from one place to another. Different groups के birds जो होते हैं और जो different जगहों पर रहते हैं, different mode of existence होती है, उनमें नेविगेशंस भी डिफरेंट होते हैं. हर एक बर्ड का अपना ही तरीका होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए. Then disadvantages of bird migrations. Many young ones are not able to reach the destinations because they die during the course of the continuous and tiresome journey. कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं यंग वंस जो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो जब माइग्रेशन करते हैं, मुसलसल कंटिन्यूस माइग्रेशन होती है, तो उसमें रास्ते में ही मर जाते हैं क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते और बहुत थकावट की वजह से भी मर जाते हैं. Sudden change in the climate such as storms, hurricanes, strong current of wind, fogs are the causes of death of sizable number of migrants. कुछ बर्ड्स जो माइग्रेट कर रहे होते हैं वो सडन चेंज जब अब हवा में सडन चेंज आ जाती है तो इसकी वजह से भी रास्ते में ही उनकी डेथ हो जाती है. जैसे स्टॉर्म्स की वजह से या बहुत ज़्यादा तेज़ हवा हो या फॉग वगैरह हो तो इसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है. Sometimes man-made high towers and lighthouses cause the death of migratory birds. इंसानों के बनाए हुए ये ऊंचे ऊंचे जो टावर्स होते हैं या लाइट हाउसेस होती है, इसकी वजह से भी बर्ड्स की माइग्रेटरी बर्ड जो होती है ना, जो माइग्रेट कर रहे होते हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है. मैन themselves are responsible for the death of the migrants. इंसान खुद ही रिस्पॉन्सिबल है इन बर्ड्स की डेथ के लिए. क्यों? क्योंकि ये इन पुअर बर्ड्स को शूट कर देते हैं अपने ख्वाहिशात के लिए और अपने लेजियर्स के लिए. ठीक है, सो दैट्स इनफ फॉर टुडे. ओके, थैंक यू.